بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوٹیوب چینل شمیر بی کے ڈبلیو وائس کے معزز دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ یہ اگست 1973 کی بات ہے جب میری پہلی کہانی وہی سیڑھیاں وہی زہر حکایت میں چھپی تھی۔ اس کے بعد یہ سلسلہ آج تک چل رہا ہے اور جب تک میرے دم میں دم ہے میں لکھتا رہوں گا۔ یہاں میں یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ میں کوئی رائٹر نہیں ہوں، مجھے رائٹر بنانے والے اور لوگ ہیں۔ میں تو اپنی تھانے داری زبان میں الٹی سیدھی کہانی لکھ کر دے دیا کرتا ہوں۔ آج تک جو کہانی پہنچتی ہے وہ عارف محمود کے جادوئی قلم کی کرامات ہوتی ہیں۔ میں آپ کو قتل کی ایک واردات کی تفتیش سنا رہا ہوں۔ غالباً یہ بات میں پہلے بھی کسی کہانی میں لکھ چکا ہوں کہ انسان کی نفسیات سمندر کی طرح ہے۔ کوئی نہیں بتا سکتا کہ اس کے اندر کیا کچھ چھپا ہوا ہے۔ سطح سے پرسکون نظر آنے والے سمندر کے اندر کیسے کیسے طوفان موجیں مار رہے ہیں، کوئی کنارے پر کھڑا ہو کر نہیں بتا سکتا۔ ہر انسان اپنی اپنی نفسیات کا غلام ہے۔ اگر آپ کسی تھانے کی وارداتوں کا ریکارڈ دیکھیں تو حیرت کے سمندر میں ڈوب جائیں گے۔ یہ دوسری جنگ عظیم کے فوراً بعد کا واقعہ ہے۔ اس علاقے کے تھانے میں تعینات ہوئے مجھے 2-2.5 مہینے گزر گئے تھے اور میں نے ارد گرد کے دیہات اور اپنے مطلب کے لوگوں کے متعلق واقفیت حاصل کر لی تھی۔ ایک دن صبح سویرے میں اپنے کوارٹر میں ناشتہ کر رہا تھا کہ تھانے سے ایک کانسٹیبل آ گیا۔ میں اسے اتنی صبح دیکھ کر سمجھ گیا کہ وہ کوئی خیر کی خبر نہیں لایا ہوگا۔ ضرور ڈکیتی یا قتل کی کسی واردات کی اطلاع تھانے پہنچی ہے اور ہیڈ کانسٹیبل نے پوری رپورٹ درج کرنے سے پہلے اسے میری طرف دوڑا دیا ہے۔ کانسٹیبل کے بات کرتے ہی میرے اندازے کی تصدیق ہو گئی۔ تھانے سے تقریباً 2-2.5 میل دور ایک گاؤں میں قتل کی واردات ہو گئی تھی۔ میں چاہتا تو اپنے وقت پر اپنی مرضی سے تھانے جاتا، لیکن ان وقتوں میں ابھی تھانے داروں کو ایسی عادتیں نہیں پڑی تھیں، اور دوسری طرف انگریزوں کی حکومت تھی جو اس وقت کے معاملات میں سستی برداشت نہیں کرتے تھے۔ فوراً جانے کا ایک فائدہ یہ بھی تھا کہ واردات والی جگہ پر شہادتیں اور نشانات وغیرہ ابھی ٹھیک حالت میں مل سکتے تھے۔ جتنی دیر ہوتی ان کے ضائع ہونے کا خطرہ اتنا ہی زیادہ بڑھتا جاتا۔ میں اسی وقت وردی پہن کر تیار ہوا اور کانسٹیبل کے ساتھ تھانے چلا گیا۔ وہاں 3 افراد بیٹھے ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک کو میں جانتا تھا، وہ واردات والے گاؤں کا نمبردار تھا۔ باقی 2 کے متعلق پتہ چلا کہ ایک مقتول کا بڑا بھائی ہے اور دوسرا مقتول کا بڑا بیٹا ہے۔ مقتول کے بڑے بھائی کی عمر 50-55 سال ہوگی اور بیٹا 24-25 سال کے لگ بھگ ہوگا۔ مقتول کے بھائی نے میرے ساتھ بات کی۔ وہ رکھ رکھاؤ والا معزز شخص تھا اور بات کرنے کا سلیقہ جانتا تھا۔ اس نے اپنا نام مختار حسین بتایا۔ جو بھائی قتل ہو گیا تھا اس کا نام بختیار حسین بتایا گیا۔ واردات کی تفصیل کچھ اس طرح تھی کہ بختیار حسین رات کو اپنے کھلیانوں میں سویا تھا۔ یہ اس کا معمول تھا کہ وہ رات کو کھلیان میں سوتا تھا اور صبح گھر آ کر ناشتہ کرتا تھا۔ کھلیان میں سونے کی وجہ تھی کہ گندم کی فصل کٹ چکی تھی اور ڈھیروں کی صورت میں کھلیانوں میں پڑی ہوئی تھی۔ ان وقتوں میں اکثر دشمنی کی وجہ سے کھیتوں میں کھڑی یا کھلیانوں میں سوکھنے کے لیے پڑی فصل کو آگ لگا دی جاتی تھی۔ بختیار فصل کی حفاظت کے خیال سے کھیتوں میں سوتا تھا۔ بختیار کے متعلق بتایا گیا کہ وہ فوج میں حوالدار تھا اور جنگ ختم ہونے کے بعد ریٹائر ہو کر واپس آ گیا تھا۔ اس کے پاس ایک سنگل بیرل بندوق تھی جو وہ رات کو اپنے ساتھ رکھ کر سوتا تھا۔ اس صبح گاؤں کا ایک آدمی پاؤں پھٹے اس طرف سے گزرا تو اس کو بختیار حسین چارپائی سے نیچے گرا ہوا نظر آیا۔ اگر بختیار حسین نارمل حالت میں زمین پر گرا ہوتا تو وہ آدمی اس کی طرف توجہ نہ دیتا، لیکن بختیار حسین کی پوزیشن یہ تھی کہ اس کا زیریں دھڑ چارپائی پر تھا اور بالائی دھڑ نیچے کو لڑکا ہوا تھا۔ بختیار حسین کو اس پوزیشن میں دیکھ کر یہ آدمی آگے گیا تو اسے چارپائی کے نیچے خون جمع ہوا نظر آیا۔ یہ آدمی وہیں سے واپس ہو گیا اور سیدھا مختار حسین کے پاس گیا۔ صورتحال کا علم ہونے کے بعد مختار حسین گاؤں کے نمبردار کے ساتھ کھلیان میں پہنچا۔ انہوں نے دیکھا کہ بختیار مر چکا تھا۔ وہ وہیں سے تھانے چلے آئے۔
बख्तियार का बड़ा बेटा भी साथ आ गया था। मैंने रिपोर्ट दर्ज की और उसके बाद चंद कांस्टेबल लेकर मौके वारदात की तरफ चल पड़ा। जब हम वहां पहुंचे तो लाश वाले खेत के इर्द गिर्द लोगों का हजूम नज़र आया। अब सूरज निकल आया था और गांव में कत्ल की खबर फैल गई थी। मैं परेशान हो गया कि लोगों के हजूम की वजह से कातिल के खुरे और दीगर शहादतें ज़ाय हो गई होंगी। हमें देखकर लोग रास्ता छोड़कर इधर उधर हो गए। मैं ये देखकर मुतमईन हो गया कि लोग खेत के किनारे पर ही खड़े थे। खेत के अंदर कोई दाखिल नहीं हुआ था। गांव के 3-4 मुअज़्ज़िज़ीन ने लोगों को खेत के अंदर आने से रोक रखा था। ये लोग खुरों की अहमियत समझते होंगे। मैंने आगे बढ़कर पहले लाश का नज़री मुआयना किया। लाश की हालत बिल्कुल वही थी जो मैं पहले बयान कर चुका हूँ। मकतूल मुंह के बल आधा चारपाई से नीचे गिरा हुआ था। उसके दोनों हाथ आगे को फैले हुए थे, जैसे किसी चीज़ को पकड़ना चाह रहा हो। उसका चेहरा मिट्टी से लथड़ा हुआ था। चारपाई बांध की थी और उस पर बिस्तर नहीं था, सिर्फ एक तकिया रखा नज़र आ रहा था। लाश के हाथों से कुछ दूर एक सिंगल बैरल बंदूक गिरी हुई थी। मकतूल की आंखें खुली हुई थीं। मौत की अजियत उसके चेहरे पर नक्श हो गई थी। मकतूल सेहतमंद और मजबूत तनो तोश का मालिक था। चेहरे के खदोखाल से जाहिर होता था कि मकतूल सख्त और खुरदरा आदमी होगा। उसके चेहरे से एक अजीब तरह की वहशत झलकती थी जिसे मैं कोई नाम न दे सका। मौत बड़े बड़ों को मुंह के बल गिरा देती है। वो चूँकि मुंह के बल गिरा हुआ था इसलिए उसकी पुश्त ऊपर की तरफ थी और सीना और पेट ज़मीन की तरफ था। पुश्त पर किसी किस्म के ज़ख्म का निशान नज़र नहीं आ रहा था, जिसका मतलब था कि मकतूल को सीने या पेट पर ज़ख्म आए थे। मैंने 2 कांस्टेबलों से कहा कि वो आगे आकर लाश को सीधा करें और चारपाई पर लिटा दें। 2 कांस्टेबलों ने मिलकर बड़ी एहतियात से मकतूल को सीधा करके चारपाई पर डाल दिया। मकतूल का सीना और पेट जमे हुए खून से रंगे हुए थे। चाकू या खंजर के 2 ज़ख्म सीने पर और एक लंबा ज़ख्म पेट पर नज़र आ रहा था। पेट चाक कर दिया गया था। सीने के ज़ख्म दिल के मकाम पर थे और दोनों के दरमियान बामुश्किल 1 इंच का फ़र्क था। मैंने अंदाज़ा लगाया कि यही ज़ख्म फौरी मौत का बायस बने होंगे। यकीनन उनसे दिल कट गया था। वैसे पेट का ज़ख्म भी मोहलिक था। मैंने सारी तफसील नोट कर ली और इर्द गिर्द का जायज़ा लेने लगा। अक्सर वारदातों में जाए वारदात पर मुलज़िम कोई ऐसा सुराग या शहादत छोड़ जाते हैं जो उनकी गिरफ्तारी का बायस बनती है या तफ्तीश में मदद देती है। मैंने उसी उम्मीद पर बड़ी तवज्जो और बारीक बीनी से ज़मीन का मुआयना किया, मगर मुझे ऐसी कोई चीज़ नज़र ना आई। अब मैंने खुरों पर तवज्जो दी। एक तरफ से किसी आदमी के खुरे चारपाई की तरफ आ रहे थे। उन खुरों के सिर्फ आने के निशान थे, वापस जाने वाले खुरों का कोई निशान नहीं था। मैंने अंदाज़ा लगाया कि ये मकतूल के अपने खुरे होंगे। मज़ीद तसल्ली के लिए मैंने चारपाई के एक तरफ पड़ी हुई मकतूल की जूती से कच्ची ज़मीन पर निशान बनाकर देखे जो बिल्कुल वैसे ही थे, अनोखे खुरे। मैंने चारपाई के गिर्द घूमकर देखा तो मुझे सरहाने की तरफ जूते का एक निशान नज़र आया। ये दाएं जूते का निशान था। इसका मतलब यही हो सकता था कि कातिल मकतूल के सरहाने वाली तरफ से खेत में दाखिल हुआ था। मैं खुरे का निशान देखता हुआ आगे बढ़ा तो ये देखकर हैरान रह गया कि सिर्फ दाएं पाँव का खुरा नज़र आ रहा था। बाएं जूते का निशान कहीं भी नहीं था। ये देखकर मैं चकरा गया। मैंने और गौर से ज़मीन पर बैठकर अंदाजे से इस जगह को देखा जहाँ मेरे ख्याल में बाएं जूते का निशान होना चाहिए था, तो मुझे एक अजीब सा निशान नज़र आया। ये एक गोल सा निशान था जो दाएं पाँव के खुरे के साथ साथ चल रहा था। पहले मैंने गौर नहीं किया था, लेकिन अब ये निशान साफ नज़र आ रहा था। ये किसी लाठी या बैसाखी का निशान हो सकता था। इसका मतलब ये था कि कातिल बाई टांग से लंगड़ा है और लाठी या बैसाखी के सहारे चलता है। मैं ये देखता हुआ आगे बढ़ता गया। आगे जाकर खेत ख़त्म हो गया और पगडंडी आ गई। वहाँ लोगों के हजूम की वजह से खुरों का मिलना नामुमकिन सी बात थी। ऐसे खुरे मैंने अपनी सर्विस में पहली बार देखे थे। मैंने चारपाई के इर्द गिर्द की ज़मीन को मज़ीद गौर से देखा। मुझे और कोई खुरा नज़र ना आया। इसका मतलब था कि कातिल अकेला ही था, या अगर उसके साथ कोई और था भी तो वो दूर ही खड़ा रहा होगा।
मैंने मौका पर ज़रूरी कार्रवाइयाँ की और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। इन कार्रवाइयों से फारिग होकर मैंने मकतूल के बड़े भाई मुख्तियार हुसैन को नंबरदार की बैठक में बुलवाया। मातम वाले घर में बैठकर पूछगछ करना मैं मुनासिब नहीं समझता था। सबसे पहले कत्ल की वजह मालूम करना ज़रूरी था। अगर वजह मालूम हो जाए तो फिर तफ्तीश करना आसान होता है। मकतूल के मुतालिक नंबरदार से जो बातें मालूम हुई उनके मुताबिक मकतूल अंग्रेज़ों की फ़ौज में हवालदार था। जंग अज़ीम ख़त्म होने के 3 माह बाद वो रिटायर होकर गांव आ गया। नंबरदार ने बताया कि मकतूल बड़ी दबंग और सख्त तबीयत का इंसान था। गांव में भी रोब और दबदबा रखता था। ये खुशहाल लोग थे। मकतूल रोज़गार की गर्ज से फ़ौज में भर्ती नहीं हुआ था, बल्कि उसे फ़ौज में जाने का शौक़ था। अभी मैं नंबरदार के साथ बातें कर रहा था कि मकतूल का बड़ा भाई मुख्तार आ गया। मैंने नंबरदार को वहाँ से भेजकर उसे अपने पास बिठा लिया। इजहार अफसोस के बाद मैं मकतूल के बारे में बातें करने लगा। मकतूल की किसी के साथ दुश्मनी थी? मैंने पूछा। या पिछले दिनों किसी के साथ लड़ाई झगड़ा तो नहीं हुआ? हम दुश्मनदार लोग हैं जी, मुख्तार ने जवाब दिया। वैसे तो अक्सर छोटे मोटे लड़ाई झगड़े होते ही रहते हैं, लेकिन असल दुश्मनी नहर पार के गांव के एक ख़ानदान के साथ है। उनके साथ कई बार डांग सोटा चल चुका है। क्या यह दुश्मनी इस हद तक है कि कत्ल की नौबत आ जाए? मैंने पूछा। और क्या इन लोगों में इतनी हिम्मत है कि वो तुम्हारे गांव में आकर कत्ल कर जाएं? दुश्मनी तो ऐसी है कि कत्ल करना या हो जाना कोई बड़ी बात नहीं, मुख्तार ने जवाब दिया। और वो लोग कत्ल करने और हो जाने से डरने वाले लोग नहीं। दुश्मनी की वजह क्या है? मैंने सवाल किया। गलती दरअसल हमारे बंदे की थी, मुख्तार ने कहा। हमने माफ़ी भी मांगी थी, लेकिन इन लोगों का रवैया इतना हद तक आमेज था कि ना चाहने के बावजूद बात बढ़ गई। बस फिर लाठियां कुल्हाड़ियां चल गईं। कुछ उनके बंदे ज़ख्मी हुए, कुछ हमारे। थाने तक बात पहुंची थी। मैंने उस ख्याल से पूछा कि थाने में इसका रिकॉर्ड होगा। नहीं, मुख्तार ने कहा। उन्होंने कहा था कि थाने बुज़दिल जाया करते हैं, इसलिए वो थाने नहीं जाएंगे। हम भी बुज़दिल नहीं कहलाना चाहते थे, इसलिए दोनों पार्टियों में से कोई भी थाने न गया। क्या इन लोगों में कोई ऐसा मर्द है जिसकी बाईं टांग कटी हुई हो? मैंने उससे पूछा। या बाईं टांग से माजूर हो? बिल्कुल है मलिक जी, उसने ज़रा जोश से कहा। आप क्यों पूछ रहे हैं? कातिल के खुरों से साबित होता है कि उसकी बाईं टांग नहीं है, मैंने कहा। जाए वारदात पर जो निशान पाए गए हैं, इनमें सिर्फ दाएं जूते का निशान है, जबकि बाएं जूते वाली जगह पर लाठी या बैसाखी का निशान है। इस लंगड़े का नाम इनामुल्लाह है, मुख्तार ने कहा। वो नामों के नाम से मशहूर है। मुझे यकीन है कातिल वही है। ये बात तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो? मैंने पूछा। सिर्फ खुरों की वजह से? ये बात नहीं, मुख्तार ने कहा। दरअसल नामू की टांग हमारे साथ लड़ाई में ही ज़ाय हुई थी। उससे पहले वो बिल्कुल ठीक था। बड़ा ज़बरदस्त लड़ाका और जीदार आदमी है। लड़ाई के दौरान हमारे किसी आदमी की कुल्हाड़ी उसकी टांग पर घुटने के करीब इस तरह लगी कि टांग के पट्टे कट गए। पहले तो गांव के सियाने से इलाज कराता रहा, मगर देसी इलाज से ज़ख्म ठीक होने की बजाय बिगड़ गया। फिर उसको शहर के अस्पताल ले गए। वहाँ डॉक्टरों ने बताया कि टांग में जहर फैल चुका है। अगर टांग काटी ना गई तो जहर सारे जिस्म में फैल जाएगा। इस तरह नामू एक टांग से महरूम होकर शहर से वापस आया। हमने सुना था कि टांग कटने पर वो गमगीन या मायूस नहीं हुआ था, बल्कि उसने गांव वालों के सामने ललकार कर ऐलान किया था कि अपनी एक टांग के बदले वो दुश्मनों का एक बंदा मारेगा। इसकी ये धमकी हम तक पहुंच गई थी। अब आपकी बात सुनकर मुझे यकीन हो गया है कि नामू ने अपनी धमकी पूरी कर दी है। इसकी ये बात सुनकर मुझे तजस्सुस हुआ कि ऐसी क्या दुश्मनी थी कि दोनों ख़ानदान एक दूसरे के खून के प्यासे हो रहे थे। मैंने मुख्तार से कहा कि वो पूरी बात तफसील से सुनाए। इसके जवाब में मुख्तार ने मुझे जो बात सुनाई वो मैं अपने अल्फाज में मुख्तसर करके सुना देता हूँ। गामू का किस्सा। मुख्तार, जब्बार और बख्तियार 3 भाई थे। ये खुशहाल ज़मींदार ख़ानदान था और गांव में इनका रोब-दाब था। मुख्तार सबसे बड़ा था, उसके बाद जब्बार था और बख्तियार सबसे छोटा था। मुख्तार का एक बेटा और 3 बेटियां थीं। जब्बार का सिर्फ एक बेटा था। अभी ये बेटा 10 साल का होगा कि उसका बाप हैज़े में चल बसा।
उसके बेटे को बाद में मुख्तार और बख्तियार ने मिलकर पाला। इस लड़के का नाम गुलाम हुसैन था और सब उसे गामू कहते थे। गामू शुरू ही से बड़ा सेहतमंद और खुले हाथ पैरों वाला बच्चा था। जवान हुआ था उस जमाने के मेयार के मुताबिक बड़ा खूबसूरत जवान निकला। गामू को शुरू से ही कसरत का शौक था। वो गांव की कबड्डी टीम का सबसे अहम खिलाड़ी था। इर्द गिर्द के देहात में उसने धूम मचा रखी थी। कुदरत ने उसे बड़े ही खूबसूरत जिस्म और शक्ल से नवाजा था। उनकी कबड्डी टीम अक्सर दूसरे देहात में भी कबड्डी खेलने के लिए जाती रहती थी। नहर पार वालों से उनका कांटेदार मुकाबला होता था। गामू की वजह से अक्सर उसके गांव की टीम का पल्ला भारी रहता था। कबड्डी के मुकाबलों के सिलसिले में दोनों टीमों का एक दूसरे के यहाँ आना जाना लगा रहता था। इस तरह गामू पार वाले गांव में भी मशहूर हो गया। एक बार गामू की टीम पार वाले गांव गई हुई थी। वहाँ उन्होंने कबड्डी का एक मैच खेला और जीत लिया। गामू और उसके साथियों की वापसी तक शाम का अंधेरा छाने लगा था। रास्ते में माल्टों का एक बाग पड़ता था। जब वो बाग के करीब से गुजर रहे थे तो अचानक बाग की तरफ से एक उधेड़ उम्र औरत आती दिखाई दी। जब वो उसके करीब पहुंचे तो उस औरत ने गामू को रोक लिया और कहा कि वो उससे अलहदगी में एक बात करना चाहती है। गामू ने अपने साथियों से कहा कि वो चलते रहें, वो उनके पीछे आ रहा है। वो औरत उसे माल्टों के बाग के अंदर ले गई। बाग के अंदर अंधेरा ज़्यादा था। गामू ने देखा कि एक दरख्त के नीचे कोई खड़ा है। दूर से पता नहीं चलता था कि वो औरत है या मर्द। जब वो करीब पहुंचा तो देखा वो तो बड़ी खूबसूरत और नौजवान लड़की थी। गामू ने पीछे मुड़कर औरत से इस बारे में पूछना चाहा तो वो गायब हो चुकी थी। तुम्हें मैंने बुलाया है, लड़की ने कहा। तुम्हें बुरा तो नहीं लगा? बुरा तो नहीं लगा, गामू ने कुछ ना समझते हुए कहा। मगर बुलाया क्यों है? दिल के हाथों मजबूर होके लड़की ने नज़रें झुकाकर कहा, मेरा नाम फातिमा है, मैं तुमसे मिलना चाहती थी। क्यों? तुम मुझे अच्छे लगते हो, फातिमा ने कहा, और मैं दिल के हाथों मजबूर हो गई हूँ। गामू ने फातिमा को समझाया कि इस तरह इसकी बदनामी का खदशा है, लिहाजा वो इसका ख्याल दिल से निकाल दे और वापस चली जाए। मैंने औरत होकर इतना बड़ा कदम उठाया है, फातिमा ने कहा। तुम मर्द होकर डर रहे हो, या फिर साफ कह दो कि मैं तुम्हारे दिल को अच्छी नहीं लगी। खुदा पाक की कसम, आइंदा कभी तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊँगी। तुम बहुत खूबसूरत हो फातिमा, गामू ने कहा, और मेरे दिल को अच्छी भी लगी हो, लेकिन फिर कहूँगा कि अपनी इज्जत का ख्याल करो और वापस चली जाओ। मुझे गलत ना समझना गामू, फातिमा ने कहा। मैं तुमसे पाक साफ मोहब्बत करती हूँ, मेरे दिल में शैतान नहीं है। मैं एक शर्त पर वापस जाऊँगी, अगर तुम फिर मिलने का वादा करो तो, वरना तुम्हारे पीछे पीछे चलती तुम्हारे घर तक पहुँच जाऊँगी। गामू ने उससे अगले दिन मिलने का वादा कर लिया। फिर माल्टों के इस बाग में उनकी मुलाकातें होने लगीं। गामू शाम को अपने गांव से घोड़ी पर बैठकर नहर पार जाकर फातिमा से मिलने जाने लगा। जो लोग गांव की ज़िंदगी को समझते हैं वो जानते होंगे कि गांव में किसी का राज नहीं रहता। फातिमा और गामू के किस्से लोगों में फैलने लगे। जब ये किस्से फातिमा के घर वालों तक पहुँचे तो वो लोग मरने मारने पर उतर आए। उन्होंने फातिमा पर सख्ती की और उसका घर से निकलना बंद कर दिया। उसके बावजूद फातिमा किसी न किसी तरह गामू से मिलने चली आती थी। फातिमा के बाप और भाइयों ने उसे मारना पीटना शुरू कर दिया, लेकिन वो फिर भी बाज ना। फातिमा की बरादरी वालों ने ऐलान किया था कि अगर गामू इनके गांव के करीब भी नज़र आया तो जान से मारने की बजाय उसकी दोनों टांगें और बाजू तोड़कर उसे हमेशा के लिए अपाहज कर देंगे। इस सारे मामले की इतला गामू के ताया मुख्तार और चचा बख्तियार को मिली तो उन्होंने गामू को समझाया कि वो इस चक्कर को छोड़ दे और आइंदा कभी पार वाले गांव में ना जाए और ना ही फातिमा से मिलने की कोशिश करे। गामू ने कहा कि वो सिर्फ एक शर्त पर इनकी ये बात मानेगा कि वो इसके लिए फातिमा का रिश्ता मांगे। ये एक नामुमकिन सी बात थी। अगरचे दोनों ख़ानदान बराबर की टक्कर के थे, लेकिन ज़ात बरादरी का फ़र्क आड़े आ जाता। फातिमा कहाँ गई? उन्हीं दिनों बख्तियार फ़ौज में चला गया। मुख्तियार ने कुछ मुअज़्ज़ज़ आदमियों को इस बात पर तैयार किया कि वो नहर पार वालों के पास जाएं और गामू के लिए फातिमा के रिश्ते की बात चलाएं। ये लोग फातिमा के गांव चले गए। वहां उनकी बहुत आवभगत की गई। इन मुअज़्ज़िज़ीन ने सारे मामले पर बात की और गामू के ताया मुख्तार की तरफ से माफ़ी भी मांगी, लेकिन जूँ ही इन मुअज़्ज़िज़ीन ने फातिमा के रिश्ते की बात छेड़ी
वो लोग हत्थे से उखड़ गए। फातिमा की बरादरी वालों ने इन मुअज़्ज़िज़ीन से कहा कि वो फातिमा का नाम भी न लें। ये मुअज़्ज़िज़ीन नाकाम वापस आ गए। गामू को इस बात का इल्म हुआ तो वो बड़ा तिल मिलाया। उसने कहा कि वो फातिमा को हासिल करके रहेगा, चाहे इसके लिए उसको कुछ भी करना पड़े। कुछ दिनों बाद गामू गांव से गायब हो गया। वो किसी को कुछ बताकर नहीं गया था। उसे हर उस जगह तलाश किया गया जहां उसके मिलने का इम्कान था, मगर उसका कुछ पता ना लगा। इसी तरह 2 दिन गुजर गए। गामू की बरादरी वालों को शक गुजरा कि कहीं गामू फातिमा के गांव वालों के हत्थे न चढ़ गया हो। उन्होंने 2 आदमियों को ढके छुपे अंदाज में पता चलाने के लिए फातिमा के गांव भेजा। उन दोनों ने वापस आकर इतला दी कि गामू उन लोगों के हाथ नहीं लगा। अब मामला उलझ गया कि गामू कहाँ गया। इससे अगला दिन चढ़ा तो कयामत ही आ गई। सुबह सवेरे फातिमा की बरादरी के 20-25 आदमी लाठियों कुल्हाड़ियों से मुसल्लह होकर गामू के गांव आ गए और ललकारने लगे कि गामू को उनके हवाले किया जाए। दूसरी तरफ से चंद मिनटों में गामू की बरादरी वाले भी मुसल्लह होकर निकल आए। बात खुली तो पता चला कि फातिमा रात को किसी वक्त गायब हो गई है और इन लोगों को पूरा यकीन था कि वो गामू के साथ निकल आई है। मुख्तार ने इन लोगों को बताया कि गामू 3-4 दिनों से लापता है और वो खुद बड़े परेशान हैं। फातिमा की बरादरी वाले ये बात मानने पर तैयार न थे। उनको पूरा यकीन था कि गामू गांव में कहीं छुपा हुआ है और फातिमा उसके साथ है। बात तकरार की हदूद से निकलकर डांग सोटे की मंजिल तक जा पहुंची। दोनों तरफ के 5-6 बंदे बुरी तरह जख्मी हुए। मामूली जख्म तो तकरीबन सबको लगे थे। इसी लड़ाई में नामू को टांग पर कुल्हाड़ी लगी थी, जिसकी वजह से बाद में इसकी टांग काटनी पड़ी। यहाँ से इन दोनों बरादरियों के दरमियान खूनी दुश्मनी पैदा हो गई। गामू और फातिमा का कुछ पता न लगा कि वो कहाँ चले गए हैं। सबको यकीन था कि गामू फातिमा को भगाकर ले गया है। ये थी उन लोगों की दुश्मनी की वजह। मैंने उस पर गौर किया तो इस नतीजे पर पहुंचा कि ये वजह कत्ल का बायस बन सकती है। मैंने मुख्तार से कुछ और बातें भी पूछी। मुख्तार ने साफ तौर पर फातिमा की बरादरी के लोगों पर नाम ले लेकर कत्ल का शक ज़ाहिर किया था। मैंने मुख्तार का सारा बयान लिख लिया। इस केस में मुझे ये सहूलत मिल गई थी कि इधर उधर टामक टोइयाँ मारने की बजाय तफ्तीश सिर्फ एक ही रुख पर करनी थी। कागजी कार्रवाइयाँ करते और बयान लेते दोपहर का वक्त हो गया। नंबरदार ने दोपहर के खाने का इंतज़ाम किया था। खाने से फारिग होकर मैं अपने साथ आए हुए कांस्टेबलों के साथ फातिमा के गांव चला गया। वहां के नंबरदार को मेरी आमद का पता लगा तो वो भागा आया। मैंने उसे सारी सूरत हाल बताई तो वो मुझे साथ लेकर नामू के घर की तरफ चल पड़ा। नामू के घर के सामने पहुंचकर नंबरदार ने आगे बढ़कर दस्तक दी। 10-12 साल उम्र के एक लड़के ने दरवाज़ा खोला। नंबरदार ने उसे कुछ कहा तो वो अंदर चला गया। ज़रा सी देर बाद उसने बैठक का दरवाज़ा खोला और हमें अंदर बिठाकर चला गया। हमें बैठे थोड़ी ही देर गुजरी थी कि एक कद-आवर शख्स बैसाखी के सहारे चलता हुआ अंदर आ गया। मैं उसे देखते ही समझ गया कि यह शख्स इनामुल्लाह उर्फ नामू है। वो बड़ा खूबसूरत जवान था, लंबा कद, घुटा हुआ जिस्म और हल्का सा सांवला रंग। वो बड़ा खूबसूरत जवान था। उसके चेहरे पर एक वकार सा था जो सामने वाले को मुतासिर करता था। सच पूछें तो इतने सेहतमंद जवान को बैसाखी के सहारे चलता देखकर मुझे बहुत अफसोस हुआ। मैंने उसे बैठने को कहा तो वो बैसाखी एक तरफ रख कर बैठ गया। तुम वाकई जवान मर्द हो, मैंने नामू की पीठ थपक कर कहा। तुमने अपना कौल पूरा करके दिखा दिया। कौन सा कौल जी? नामू ने बड़ी हैरत से पूछा। आप किस कौल की बात कर रहे हैं? याद करो नामू, मैंने कहा, जब तुम्हारी टांग कट गई थी तो तुमने रोने धोने की बजाय मर्दों की तरह ललकार कर कहा था कि तुम अपनी एक टांग के बदले में दुश्मनों की एक लाश गिराओगे। ओह हाँ, नामू ने ज़रा सा सोचा और फिर अपनी दाहिनी कनपटी पर शहादत की उंगली मारते हुए कहा, वो तो मैंने जोश और गुस्से में आकर कहा था। लड़ाई झगड़ों में ज़ख्म तो आते ही रहते हैं। मेरी टांग अपनी गलती की वजह से ज़ाय हुई थी। शहर के डॉक्टरों ने कहा था कि अगर गांव में अनाड़ी जिराह से इलाज कराने की बजाय फ़ौरन शहर के अस्पताल आ जाता तो टांग ठीक हो सकती थी। आखिर तुमने अपनी टांग का बदला ले ही लिया, मैंने कहा। कैसा बदला जी? नामू ने परेशान होकर कहा। मैंने किससे बदला लिया है?
इतने परेशान क्यों होते हो नामू? मैंने कहा, तुमने मर्दों वाला काम किया है, एक टांग से माजूर होने के बावजूद दुश्मन के घर जाकर वार किया है। अब तो नामू की हालत देखने वाली थी। वो आंखें फाड़ फाड़ कर मेरी तरफ देख रहा था। साफ पता चल रहा था कि अगर वो एक टांग से माजूर ना होता तो तड़प कर उठ खड़ा होता। वो बैठे बैठे बेचैनी से इधर उधर हिल रहा था। ये आप क्या कह रहे हैं? उसने सटपटा कर कहा, मैंने किसी पर वार नहीं किया। आप किस दुश्मन की बात कर रहे हैं? तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं किस दुश्मन की बात कर रहा हूँ। मैंने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, गामू को भूल गए हो? रात को गामू के चचा को कत्ल कर दिया गया है। ये बताओ कि तुमने अकेले ये काम किया है या कोई तुम्हारे साथ था? मुझे तवक्को थी कि मेरी बात सुनकर नामू उछल पड़ेगा और ज़ोर व शोर से इनकार करेगा, लेकिन उसने कोई ख़ास रद्द-ए-अमल ज़ाहिर ना किया। मैं गामू के चचा को कत्ल क्यों करता? उसने एतमाद से कहा, हाँ, अगर कभी भी ज़िंदगी में गामू सामने आ गया तो उसे ज़रूर कत्ल करूँगा और कत्ल करके छुपाऊँगा नहीं, सीधा आपके पास आ जाऊँगा। अगर तुम मुझे साफ साफ बता दो तो मैं तुम्हारे बचाव के लिए रास्ता निकाल लूँगा। मैंने उसकी बात पर तवज्जो दिए बगैर कहा, अगर नहीं मानोगे तो फिर मैं खुद ही साबित कर लूँगा कि कत्ल तुमने किया है। फिर मुझसे किसी रियायत की उम्मीद ना रखना। बेहतर है इकबाली बयान दे दो और इसका फ़ायदा मुझसे हासिल करो। अभी मैं नामू से तफ्तीश कर ही रहा था कि एक कांस्टेबल ने बताया कि नामू की बरादरी के कुछ लोग अंदर आना चाहते हैं। मैंने कांस्टेबल से कहा कि अभी किसी को अंदर नहीं आने देना, मैं खुद ही बुला लूँगा। मैं तफ्तीश के इस मरहले पर मुलजिम को ढील नहीं देना चाहता था। जाए वारदात पर तुम्हारे खुरे देखे गए हैं। मैंने नामू के कदमों तले से ज़मीन खींचने के लिए कहा, इस किस्म के खुरे किसी और के हो ही नहीं सकते। दाएं जूते का निशान और बाएं जूते की जगह। अब भी इनकार करोगे कि कत्ल तुमने नहीं किया? मेरी बात के जवाब में नामू कस्में खा खा कर मुझे यकीन दिलाने की कोशिश करने लगा कि कत्ल उसने नहीं किया, लेकिन मैं उसकी कोई बात मानने को तैयार नहीं था। पुलिस वाले अगर कस्मों पर यकीन करने लगें और रोने धोने से मुतासिर हो जाएं तो मुजरिम जेल ना जाएं और अदालतों कचहरियों की ज़रूरत ही ना रहे। पुलिस और अदालत सबूत देखती है। हालात और वाक़याती शहादत नामू के ख़िलाफ़ थे। जाए वारदात पर मिलने वाले खुरे का मैंने मोल्ड तैयार करवा लिया था। वहाँ नरम ज़मीन थी और खुरों के निशान बड़े ही वाज़ेह थे। ये देसी जूती का खुरा था जो देहात में आम इस्तेमाल होता था। अब मैंने नामू के खुरे से जाए वारदात पर मिलने वाले खुरे का मुवाजना करना था। आला कत्ल कहाँ है? मैंने नामू से पूछा। अगर खुद दोगे तो फ़ायदे में रहोगे, वरना मैं पूरे घर की तलाशी लूँगा और आला कत्ल बरामद करूँगा। जब मैंने कत्ल ही नहीं किया तो आला कत्ल कहाँ से दे दूँ? नामू ने तकरीबन रो देने वाली आवाज़ में कहा, आपने अगर तलाशी लेनी है तो शौक़ से ले लें। मैंने अंदाज़ा लगाया कि आला कत्ल घर के अंदर नहीं है। हो सकता है इसने आला कत्ल नहर में फेंक दिया हो या कहीं दफन कर दिया हो। फिर भी मैंने तलाशी लेना ज़रूरी समझा। इससे पहले मैंने कांस्टेबल को बुलाकर कहा कि वो नामू के रिश्तेदारों को अंदर भेज दे। कांस्टेबल चला गया। थोड़ी देर बाद 3 मुअज़्ज़िज़ सूरत आदमी अंदर आ गए। तारुफ कराने पर मालूम हुआ कि इनमें से एक फातिमा का बाप है, दूसरा उम्र में सबसे बड़ा था, वो नामू का बाप था, और तीसरा नामू का ससुर था। मैंने उनको सारी तफसील बता दी और नामू के बाप से कहा कि वो नामू से कहे कि इकबाल जुर्म कर ले और आला कत्ल भी बरामद करवा दे। नामू ठीक कहता है। नामू के बाप ने कहा, यह कत्ल उसने नहीं किया, ये पिछली रात घर में सोया हुआ था। मैं इस बात की गवाही देता हूँ कि यह सारी रात घर में ही रहा है और एक लम्हे के लिए भी बाहर नहीं निकला। फिर ये भी तो देखें कि मेरा बेटा माजूर है। ये किस तरह इतनी दूर जाकर एक आदमी को कत्ल करके वापस आ सकता है, और वह भी इस तरह के किसी को इसका इल्म भी ना हो। मैंने भी पहले इस पहलू पर सोचा था कि एक टांग से माजूर आदमी किस तरह एक गांव से दूसरे गांव आकर कत्ल की कामयाब वारदात कर सकता है, लेकिन फिर नंबरदार ने बातों बातों में नामू का जिक्र करते हुए बताया था कि बड़ा जीदार बंदा है। एक टांग से माजूर होने के बावजूद किसी की मदद के बगैर घोड़े पर सवार हो जाता है और बड़ी महारत से घोड़ा दौड़ाता है। बेशक आपका बेटा माजूर है, मैंने नामू के बाप से कहा, लेकिन मैंने सुना है कि माजूर होने के बावजूद ज़बरदस्त लड़ाका है और घोड़सवारी कर सकता है।
ऐसी सूरत में उसके लिए खेतों में सोए हुए किसी आदमी को कत्ल करके वापस आ जाना कोई मुश्किल नहीं। फिर जाए वारदात पर आपके बेटे के मखसूस खुरे मिले हैं, दाएं जूते और एक बैसाखी के निशान वाले खुरे, और किसके हो सकते हैं आप खुद ही बता दें। मैं कुरान उठाने को तैयार हूँ, नामू के बाप ने कहा कि नामू पिछली रात थोड़ी सी भी देर के लिए भी घर से गायब नहीं हुआ। जहाँ तक जाए वारदात पर नामू के खुरों की मौजूदगी का मामला है, मैं खुद हैरान हूँ कि ऐसा किस तरह मुमकिन है। ज़रूर किसी ने मेरे बेटे को फंसाने के लिए ऐसा किया है। पुलिस वाले कस्मों को नहीं मानते। मैंने कहा, आप नामू के बाप हैं, इस वजह से आपकी गवाही वैसे भी नाकाबिले कबूल है। एक बाप अपने बेटे को कत्ल के इल्ज़ाम से बचाने के लिए झूठी कस्में भी खा सकता है और कुरान भी उठा सकता है। और फिर ये भी तो सोचें कि किसी को क्या ज़रूरत पड़ी है आपके बेटे को फंसाने की।